Good morning, everyone. We have covered 4 chapters in science. We have covered 4 chapters so far: force and pressure, cells, metals and non-metals, and then pollution. So this is a syllabus for UT1. In UT1, 4 chapters are coming. These 4 chapters we have done so far. It is a syllabus for UT1. So as we have covered our UT1 syllabus, so in today's class we will start revision work. And in today's class we will take the revision of chapter force and pressure. First we will revise topic force. So force, all of you know, push or pull an object on an object is called force. It is of two type: contact and non-contact force. Contact force are those forces when the forces act between two objects. जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है एंड टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, वो एक्चुअल में कॉन्टैक्ट में है आपस में, तो दोज फोर्सेज आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेज. Two type of contact forces we studied: muscular force due to the action of muscles, like we lift a bag तो हमारी muscles उसमें काम करती हैं, ठीक है. तो muscular force is due to the action of muscles. Okay. Frictional force it opposes the motion. And then non-contact force में we studied magnetic force. Force exerted by magnet. Electrostatic force due to the charges. Gravitational force, this force acts between any two objects. It is a force of attraction. Okay. Now we studied resultant force. Resultant force, what do you mean by resultant force? We studied that if two forces are acting in same direction. See, F1 and F2 are the two forces and they are acting in same direction. Same direction है. इस फोर्स की डायरेक्शन भी यहाँ है और इसकी भी यहाँ है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स आप कैसे लिखेंगे? F. रिजल्टेंट फोर्स इज F. वो किसके इक्वल आएगा? इन दोनों के सम के, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो दीज टू फोर्सेस गेट एडेड. F1 प्लस F2 हो जाएगा. ठीक है. क्यों ऐड करते हैं? सपोज यू आर मूविंग और पीछे से आपको कोई आकर पुश करे, तो आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एकदम से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो दैट्स वाई मीन्स क्या है, दोनों फोर्सेस जो है वो ऐड हो रहे हैं. तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2. एंड इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3. सपोज F1 जो है इस डायरेक्शन में है और F2 की डायरेक्शन इज अपोजिट टू F1, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? इन दिस केस F विल बी इक्वल टू F1 minus F2. So means when two forces are acting in opposite direction, so resultant force can be obtained by the subtraction of those two forces. And then effects of force. What are the effects of force? Whenever you apply force, suppose you squeeze a lemon, तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी. You compress, push a स्पॉन्ज को आप पुश करेंगे तो उसका भी साइज जो है वो चेंज हो जाता है. स्पीड, जैसे आपने फोर्स लगाया तो किसी भी व्हीकल की, किसी भी ऑटोमोबाइल की स्पीड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है. चेंज इन डायरेक्शन, आप फोर्स से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. सो दिस वाज जस्ट द समराइजेशन ऑफ द टॉपिक्स रिलेटेड टू द फोर्स. ठीक है. सब टॉपिक जो फोर्स में थे जस्ट उसका सिनॉप्सिस है, समराइजेशन है. नाउ वी विल रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ओके. सो इफ यू वांट टू गेट डिटेल्स, you can watch the videos again. The videos I have sent when I taught this chapter, you can watch those videos again if you want to study in details. Okay, it is just a synopsis, summarization of this topic. Now I am taking the question answers related to this topic, and these answers you have covered in assignment also. See, defines. First define is force. What do you mean by force? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स. ओके. मैग्नीट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ
कि फोर्स कितना लग रहा है, उसका स्ट्रेंथ कितनी है, उसको हम किससे एक्सप्रेस्ड करते हैं, मैग्नीट्यूड से. नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो स्ट्रेंथ बताता है, उसका मेजरमेंट जो बताता है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है. तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. एंड प्रेशर तो अभी वी हैव नॉट टेकिंग. देन मस्कुलर फोर्स. What do you mean by muscular force? Force due to the action of muscles. Okay. See, only one line answers are there. Magnetic force, force exerted by magnet. Okay. Frictional force, force that opposes the motion of an object. फ्रिक्शनल फोर्स को हमने पढ़ा था ना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर साइकिल सपोज आपकी मूव कर रही है, यू स्टॉप पैडलिंग, आप पैडल मारना स्टॉप कर देते हो, तो धीरे धीरे मतलब आपने मस्कुलर फोर्स लगाना बंद कर दिया. बट ग्राउंड जो है वो तो फोर्स लगा रहा है साइकिल के टायर्स के ऊपर, एंड दैट फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स. सो द फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है. ओके. ग्रेविटेशनल फोर्स, इट एक्ट्स बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ. ठीक है. किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, I demonstrated you one activity. कॉम, ड्राई हेयर से आपने कॉम को रब किया एंड इट विल अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर. पहले जो है वो नहीं अट्रैक्ट करता था बिकॉज दोनों कॉम और ड्राई पेपर, कॉम एंड योर पेपर दोनों ही जो है वो अनचार्ज है. बट एज यू रब द कॉम विद योर ड्राई हेयर, तो कॉम जो है वो चार्ज हो जाती है एंड इट विल नाउ अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ पेपर. वो चार्ज हो जाती है, तो चार्ज होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन लगता है उसको हम क्या फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके. सो दीज आर द डेफिनेशन, यू विल लर्न दीज डेफिनेशंस. अभी मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर नहीं लिया बिकॉज वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. अभी राइट नाउ आई एम टेकिंग द टॉपिक फोर्स और वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक ओनली. ओके. नाउ the next question is difference between contact force and non-contact force. You have to write 2 points in it, 2 differences. अगर आपको जब difference between लिखना है तो you will make table. आप tabular form में points में लिखेंगे. Okay. So first point, contact force में force between 2 objects. दो objects के जो बीच में force लग रहा है that are in actually contact with each other. और वो जो दो objects हैं they are in contact with each other. Like example, in second point you will write example muscular force. Okay. So this is contact force and then it's example. तो muscular force, how, when you lift a bag, when you lift a bucket, कुछ भी आप उठाते हैं तो that bag and your body they are in contact. ठीक है ना, contact में होती हैं. Now non-contact force. This force acts between 2 objects that are not in contact with each other. उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगना जो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में है ही नहीं. लाइक मैग्नेटिक फोर्स, योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. कोई भी आप चीज़ रिलीज करेंगे फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कुछ हाइट से आप चीज़ को नीचे फेंकते हैं तो अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट करती है. ठीक है ना. तो वो अट्रैक्शन जो है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो अर्थ और वो ऑब्जेक्ट जो सर्टेन हाइट पे पड़ा हुआ है, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, बट फिर भी अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर रही है. सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स द फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स एंड दोज 2 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ओके. नाउ question number 3, give 2 example each of situation in which you push or pull to change the state of motion of object. देखो आप पुश और पुल कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आते हैं. पहले कोई मोशन में, जैसे वो पहले रेस्ट पे था, अब वो मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी स्टेट में चेंजेस आएंगे. ओके. तो यू हैव टू गिव टू एनी एग्जाम्पल. यू कैन गिव एनी 2 एग्जाम्पल. लाइक आई हैव रिटन फॉर पुल. पुल करा ओपनिंग अ ड्रॉर, जब आपने ड्रॉर को ओपन किया, एग्जाम्पल ऑफ पुल. ठीक है. हॉर्स पुल्स अ कार्ट, हॉर्स जो है वो पीछे काठी खींचता है, हॉर्स पुल्स अ कार्ट. सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर pull situation in which the object is changing its state of motion. Okay. Now for push, close the door. push किया आपने, door close हो गया.
मूविंग अ वुडन ब्लॉक, वुडन बॉक्स पड़ा हुआ है, आप उसको मूव करा रहे हैं, पुश करके उसको मूव करा रहे हैं, तो उसकी भी स्टेट ऑफ मोशन में देयर विल बी चेंज. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, give two examples of situation in which applied force causes a change in shape of an object. अब आपने फोर्स लगाया और शेप में चेंजेस आए. यू कैन गिव एनी टू एग्जाम्पल, लाइक आई हैव रिटन स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन, स्क्वीजिंग टूथपेस्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग. यू कैन राइट any two examples. Okay. State the effects of force in each case. See, some statements are given to you, like first, squeezing a piece of lemon. When you squeeze a piece of lemon, तो what would be the effect of force? क्या effect आया force का? Force जब लगा, उसने आपने squeeze किया, तो उसकी जो है वो shape change हो जाएगी, change in shape. टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट, जब आप पेस्ट निकालते हैं टूथपेस्ट से, तब क्या इफेक्ट आया? आपने फोर्स लगाया और जिससे कि उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी. ओके. अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल टू द अदर एंड ऑन अ हुक इज ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल. अब एक हुक है, सपोज दिस इज अ हुक. ठीक है. अब आपने कोई लोड जो है, ये स्प्रिंग है, ठीक है. जब आपने इसके, ये स्प्रिंग है, इन नेक्स्ट केस आपने क्या किया, इसमें लोड वन एंड पे टाई कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? स्प्रिंग नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगी, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. ओके. साइज बढ़ जाएगा उसका. यू कैन राइट. ओके. जो भी इफेक्ट है you will analyze and you will write. Okay. Blacksmith hammers a hot piece of iron. लोहा गरम है. blacksmith means लोहार. जब वो उसको हैमर करता है, उसको हैमर के साथ उसको बीट करता है, तो what will happen? जो आयरन की जो है वो शेप जो है वो चेंज हो जाती है. ओके. So these are the effects of force. Question number 6. A rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. एक रॉकेट को जो है आपने ऊपर फायर किया है, सैटेलाइट, टू लॉन्च अ सैटेलाइट. ठीक है. नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड. अब जब उसको आपने लॉन्च किया तो उसके ऊपर टू टाइप ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट. यू हैव टू राइट अबाउट दोज टू फोर्सेज. यू हैव टू नेम द टू फोर्सेज. सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अर्थ लगा रही है. सेकेंड, एयर जो है वो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है. ठीक है. सो टू फोर्सेज आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th. An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. आपने एक बैलून को लिया, उसको सिंथेटिक पीस ऑफ क्लोथ के साथ आपने उसको रब किया. नाउ यू आर प्रेसिंग दैट बैलून अगेंस्ट अ वॉल. तो व्हाट विल हैपन? बैलून विल स्टिक टू द वॉल. क्यों? क्योंकि वो रब करने से उसके अंदर चार्ज आ गया. तो चार्ज आया तो उसके लिए कौन सा फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके. यू हैव टू राइट ओनली द नेम ऑफ द फोर्स. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? Okay. अगर आप 2 बैलून्स लेते हैं, दोनों बैलून्स को आपने क्लोथ के साथ रब किया, ठीक है, दोनों बैलून्स को आप वॉल के साथ प्रेस करेंगे तो दोनों बैलून्स जो हैं वो वॉल के साथ स्टिक कर जाएंगे. बट इफ़ यू ब्रिंग दोज 2 बैलून्स, उन दोनों बैलून्स को अगर आप आपस में यू विल ब्रिंग क्लोज टू देम, तो व्हाट विल हैपन? दे विल नॉट अट्रैक्ट. वो रेपेल कर जाएंगे, क्योंकि जब वो क्लोथ के साथ उसको रब किया तो सेम टाइप ऑफ चार्जेस आ गए दोनों में. ठीक है. बैलून 1 में भी और बैलून 2 में भी. तो लाइक चार्जेस वी स्टडीड ना, कि लाइक चार्जेस जो है वो रेपेल करते हैं, तो वो इसीलिए वो जो उनमें रिपल्शन होता है. ठीक है. सो द फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके. Question number 8 is, name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. Bucket में water है, plastic bucket की है जिसमें water है, आपने उसको hold किया हुआ है ground level से above. ठीक है. Means you lifted that bucket. तो discuss why the forces acting on the bucket do not bring any change in the state of motion. अब bucket के state में change क्यों नहीं आ रहा? Why? Because when you are holding a bucket, आपने बकेट को उठाया, ऐसे उठाया, तो मीन्स यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. मस्कुलर फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दीज टू फोर्सेज आर equal. When these two forces are equal, तो their effect will get cancel each other. इसीलिए there will be no change in the state of motion. Okay.
Now see question number 9th. You have to calculate the resultant force. F1, F2, F3 दिया हुआ है आपको and see the direction. तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो resultant force क्या होगा? By adding all the forces you will get the resultant force. So F will be equal to F1 plus F2 plus F3. And if two forces are acting in opposite direction, देखो ये इधर है और ये इधर है, these two forces are acting in opposite direction, so your resultant force will be equal to the subtraction of these two forces, F1 minus F2. Okay, so this was all about your topic force summarization and question answers I have discussed with you. Now what you will do, you will learn these answers. See 9 questions I have done. Okay, so 9 के 9 answers जो है आज आप learn करेंगे, डेफिनेशंस लर्न करेंगे अच्छे तरीके से. वेरी शॉर्ट आंसर्स आई हैव रिटन. ठीक है, तो आप इन आंसर्स को अच्छे ढंग से लर्न करना और लिख के प्रैक्टिस करना. ओके, आपने असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं. ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, यू आर राइटिंग वेरी लॉन्ग आंसर्स, तो मैं उसको रॉन्ग नहीं कर सकती बिकॉज दोज आंसर्स आर ऑल्सो करेक्ट, बट दीज आंसर्स टू द पॉइंट, अप टू द पॉइंट, यू कैन लर्न देम वेरी इजीली. ओके,